Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's session. The first question is, under which section of the Indian Evidence Act provision relating to examination in chief is provided? Section 135, Section 136, Section 137 और Section 138. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रावधान प्रदान किया गया है? धारा 135, धारा 136, धारा 137 या धारा 138? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 137. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 137. The provision relating to examination in chief is provided under Section 137 of the Indian Evidence Act. This section defines examination in chief as the examination of a witness by the party who calls him. This section has now been replaced by Section 142 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 के तहत प्रदान किया गया है. यह धारा मुख्य परीक्षा को उस पक्ष द्वारा गवाह की परीक्षा के रूप में परिभाषित करती है जो उसे बुलाता है. इस धारा को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 142 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है. Next question is, under which section of the Hindu Marriage Act 1955 bigamy is prohibited in India? Section 14, Section 15, Section 16 और Section 17. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत भारत में द्वि विवाह प्रतिबंधित है? धारा 14, धारा 15, धारा 16 या धारा 17? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 17. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 17. Bigamy is prohibited under Section 17 of the Hindu Marriage Act 1955. This section states that any marriage between Hindus is void if, at the time of the marriage, either person already has a living spouse. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 17 के तहत द्विविवाह प्रतिबंधित है. इस धारा में कहा गया है कि हिंदुओं के बीच कोई भी विवाह शून्य है यदि विवाह के समय किसी भी व्यक्ति का पहले से ही जीवन साथी मौजूद हो. Next question is, what does Section 19 of the Contempt of Courts Act deal with? Appeals, punishment for contempt, definition of contempt और execution of orders. न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 19 किससे संबंधित है? अपील, अवमानना के लिए सजा, अवमानना की परिभाषा या आदेशों का क्रियान्वयन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अपील्स. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपील. Recently, in the case of Ajay Kumar Bhalla and others versus Prakash Kumar Dikshit, the Supreme Court observed the purview of Section 19 of the Contempt of Courts Act 1971. Section 19 of the Contempt of Courts Act 1971 deals with the right to appeal. हाल ही में अजय कुमार भल्ला एवं अन्य बनाम प्रकाश कुमार दीक्षित के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 19 के दायरे का अवलोकन किया. न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 19 अपील के अधिकार से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which order of the Civil Procedure Code deals with the consequences of not filing a written statement? Order 5th, Order 6th, Order 7th और Order 8th. सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश लिखित बयान दाखिल न करने के परिणामों से संबंधित है? आदेश 5, आदेश 6, आदेश 7, आदेश 8? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, Order 8th. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आदेश 8. Recently, in the case of Federal Brands Limited versus Cosmos Premises Private, the Bombay High Court clarified that the Civil Procedure Code 1908 does not consider a time a miscellaneous application is pending when calculating the delay in submitting a written statement. The consequences of not filing a written statement in a civil suit are dealt with under Order 8th, Rule 10 of the Civil Procedure Code 1908. हाल ही में फेडरल ब्रांड्स लिमिटेड बनाम कॉस्मोस प्रमाइसेस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 लिखित बयान प्रस्तुत करने में देरी की गणना करते समय विविध आवेदन के लंबित रहने के समय पर विचार नहीं करती है. सिविल मुकदमे में लिखित बयान दाखिल न करने के परिणामों को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 नियम 10 के तहत निपटाया जाता है. द लास्ट क्वेश्चन इज, द पावर ऑफ कोर्ट्स टू कन्वर्ट अ समन्स केस इनटू अ वारंट केस इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी? सेक्शन 302, सेक्शन 259, सेक्शन 301 और सेक्शन 322. न्यायालयों को समन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित करने की शक्ति सीआरपीसी की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत प्रदान की गई है? धारा 302, धारा 259, धारा 301 या धारा 322? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 259. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 259. The power of courts to convert a summons case into a warrant case
is provided under Section 259 of the Code of Criminal Procedure. This section allows a magistrate to convert a summons case into a warrant case if he deems it necessary for the ends of justice. This section has now been replaced by Section 282 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. न्यायालयों को समन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित करने की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 259 के तहत प्रदान की गई है। यह धारा मजिस्ट्रेट को समन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित करने की अनुमति देती है यदि वह न्याय के लिए ऐसा आवश्यक समझता है। इस धारा को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 282 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। Before we wrap up, here's a question for you. Which one of the following sections of the CRPC deals with evidence for defense? Section 264, Section 243, Section 237 और Section 242? दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बचाव के लिए साक्ष्य से संबंधित है? धारा 264, धारा 243, धारा 237 या धारा 242? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।